کا آغاز کریں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا قومی یکجہتی کے لیے بڑا اقدام، سیاسی اختلافات کے باوجود قومی مفاد میں عمران خان کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ وزیراعظم قومی چیلنجز پر تمام سیاسی قائدین کو ایک میز پر بٹھانے کا فیصلہ۔ 7 فروری کو کل جماعتی کانفرنس بلا لی، عمران خان کو بھی شرکت کی دعوت۔ وزیراعظم کی زیر صدارت اپیکس کمیٹی کا اجلاس آج پشاور میں ہوگا۔ تمام سٹیک ہولڈرز، پولیس، رینجرز اور حساس اداروں کے اعلیٰ افسران شریک ہوں گے۔ حکومت نے پی ٹی آئی کے 2 نمائندوں کو بھی شرکت کے لیے بلا لیا۔ دیکھیے، وزیراعظم شہباز شریف کی طرف سے ایک بہت بڑا جو ہے فیصلہ آیا ہے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جتنے بھی جو قومی چیلنجز ہیں اس میں دہشت گردی ہے، اکانومی ہے، قومی جو چیلنجز میں جو دیگر جو معاملات آ رہے ہیں اس پر تمام جو سیاسی جو قائدین ہیں پاکستان کی، ان کو ایک میز پر بٹھانے کا جو ہے ان کی طرف سے بڑے دل کے ساتھ جو ہے یہ فیصلہ لیا ہے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ سیاست کو پہلے بھی وہ بات کر چکے ہیں، کابینہ میں بھی بات کر چکے ہیں، بارہا وہ یہ بات کر چکے ہیں اور بالآخر آج جو ہے وہ عملی طور پر انہوں نے یہ جو ہے وہ لیا ہے، فیصلہ لیا ہے۔ اور اس میں انہوں نے یہ جو ہے بات افلوٹ کی ہے کہ تمام جو سیاسی قائدین ہیں وہ ایک میز پر بیٹھیں، اپنی سیاست کو جو ہے وہ ایک سائڈ پر رکھ کے قومی چیلنجز جو کہ وقت کا تقاضا ہے کہ تمام جو پولیٹیکل جو قیادت ہے، لیڈرشپ ہے، وہ ایک میز پر بیٹھے تاکہ اہم فیصلے لیے جا سکیں معاشی اور سیکیورٹی کے حوالے سے۔ اسی سلسلے میں 7 فروری کو جو اجلاس جو APC بلائی جا گئی ہے اس میں تمام قائدین کو جو ہے وہ مدعو کیا گیا ہے۔ بالخصوص طور پر جو ایاز صادق ہیں، جو وفاقی وزیر ہیں، ان کے ذریعے جو ہے PTI کی لیڈرشپ سے جو ہے وہ رابطہ ہوا ہے، ایاز اسد کیسر سے، اور پرویز خٹک کو جو ہے وہ اس حوالے سے تمام تر جو ہے چیزیں بتائی گئی ہیں اور باقاعدہ طور پر جو ہے دعوت دی گئی ہے کہ اس APC میں جو 7 فروری کو ہو رہی ہے اس میں عمران خان خود جو ہے وہ شریک ہوں اور PTI جو ہے وہ اس میں شامل ہو۔ اس کے علاوہ عمران خان کے علاوہ جو ہے تمام جو لیڈرشپ ہے، چاہے وہ اپوزیشن کی ہے، حکومت کی ہے، PDM، جتنے بھی لوگ جو قائدین ہیں ان کو APC میں جو ہے بڑی خوشائند بات ہے کہ APC میں تمام جماعتوں کو شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ نمائندہ خصوصی احمد منصور سے بات کریں گے۔ احمد منصور، اپیکس کمیٹی کا اجلاس، جو حالات اس وقت چل رہے ہیں، اہم ضرورت وقت کی۔ احمد منصور، کیا آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟ احمد منصور سے بات کریں گے۔ اویس، آپ اپنی بات جاری رکھیے۔ جی بالکل، جس طرح کہ یہ میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ بہت بڑے دل کے ساتھ جو ہے بڑے فیصلہ جو ہے وہ لیا گیا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ گزشتہ 4.5 سال میں جو ہے عمران خان جب برسر اقتدار تھے تو وہ انہوں نے جو ہے کبھی بھی جو انہوں نے سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا تھا جو کہ وزیراعظم خود چیئر کرتا ہے، جس میں عسکری قیادت جو ہے وہ لیڈ کر رہی تھی، اس میں بھی عمران خان جو ہے وہ خود شریک نہیں ہوتے تھے اور وہ نہیں پسند کرتے تھے اس وقت کے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے ساتھ بیٹھنا۔ لیکن اس وقت شہباز شریف خود وزیر اعظم ہیں، لیکن انہوں نے بڑے دل کے ساتھ معذرت کے ساتھ ایک بار پھر میں آپ کو روکوں گا کیونکہ رابطہ جو ہے احمد منصور صاحب بڑا کچا ہے، اس لیے دوبارہ نہ کہیں ٹوٹ جائے، اس لیے ان سے بات کر لیتے ہیں۔ احمد منصور، آپ بتائیے گا، آپ کے پاس کیا معلومات ہیں؟ جو پشاور میں واقعہ پیش آیا، افسوسناک اور دہشت گردی کا جو یہ نیا خوفناک وار ہوا جس نے ہلا کر رکھ دیا پورے نظام کو اور ایک نئی جنگ ہمارے جو سر پر آئی ہے، اس کے بعد بڑے اہم فیصلے ہوئے ہیں۔ کور کمانڈر کانفرنس بھی ہوئی ہے 2 دن پہلے اور اس کے تناظر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ حکومتیں احمد منصور سے دوبارہ رابطہ ہمارا منقطع ہو گیا، کوشش کرتے دوبارہ بحال کرنے کی رابطہ۔ اویس، ایک بار پھر آپ کی طرف آتے ہیں۔ جی اویس۔ جی، جس طرح احمد منصور صاحب بھی یہ بات کر رہے ہیں جو کہ اپیکس کمیٹی کا ہی وہ بات کر رہے ہیں جو کہ آج صبح ہونے جا رہی ہے، اس میں بھی وزیراعظم شہباز شریف کی ہی ہدایت پر PTI کے 2 نمائندوں کو جو ہے وہ مدعو کیا گیا ہے صبح گورنر ہاؤس میں۔ تو جو سیاسی اگر حوالے سے بات کریں تو بہت ہی ایک جو ہے وائس ان کا جو ہے فیصلہ ہے وزیراعظم شہباز شریف کا، اور تمام جو لیڈرشپ ہے وہ PM ہاؤس کی بجائے خود جو ہے صبح جا رہی ہے پشاور۔ اور جو دہشت گردی کا جو معاملہ ہے، کیونکہ وزیراعظم کی زیر صدارت جو ہونے والا جو کابینہ اجلاس تھا اور سیکیورٹی کے اجلاس تھے، اس میں یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ دہشت گردوں کے حوالے سے 0 ٹالرنس پالیسی پر مکمل طور پر عمل درآمد ہوگا اور جو بھی فیسلٹی ریکوائرڈ ہے خیبر پختونخوا پولیس کو اور وہاں کے جو اداروں کو، جو CTD اور دیگر جو ادارے ہیں، ان کو مکمل طور پر فیسلٹیٹ کرنے کے حوالے سے وفاق کی طرف سے جو بھی معاملت درکار ہے ان کو وہ فراہم کی جائے گی۔ ٹھیک ہے اویس کیانی، آپ کا اور احمد منصور آپ کا، دونوں نمائندگان کا بہت شکریہ۔ اسی اہم معاملے پر تجزیے کے لیے بات کریں گے سینئر تجزیہ کار جناب سلیم بخاری صاحب ہمارے
हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया बुखारी साहब आपके वक्त का। सर, यकजहती की, कौमी यकजहती की जितनी आज ज़रूरत है शायद इससे पहले कभी ना थी, कैसे देखते हैं हुकूमत के इस इक़दाम को? एक तो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई और एपेक्स कमेटी का इजलास जो तलब किया गया है। बहुत शुक्रिया आपका। मेरे ख्याल से दोनों ही फैसले बहुत ठीक हैं। जो एपेक्स कमेटी का इजलास है, वो जो सूरत हाल वहाँ पर हुई है, ख़ास तौर से ये पुलिस लाइन की मस्जिद का जो वाक़या है, इसके बाद से ये तकाजा करती है ये सूरत हाल कि इसके ऊपर टॉप ब्रास जो है, चाहे उनका ताल्लुक सिक्योरिटी एजेंसियों से है, चाहे उनका ताल्लुक सियासतदानों के अहम ओहदे वाले लोगों से है, वो मिलके बैठेंगे तो यकीनन कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। और ये नहीं होगा कि हुकूमत अगर कोई एक्ट करे या कोई फैसला करे या कोई ऑपरेशन करे तो आधा मुल्क उसकी मुखालफत कर रहा हो। तो मेरे ख्याल से कंसेंसस बिल्ड करके दहशतगर्दी के फितने को एड्रेस करने के लिए अगर सारे सर जोड़ के बैठते हैं तो ये मेरे ख्याल से इंतहाई अहम फैसला है। और इसी तरह से जो दूसरा इनिशिएटिव है प्राइम मिनिस्टर का कि उन्होंने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई है, और मुझे इस बात की भी बहुत खुशी है कि उन्होंने इमरान खान साहब को भी दावत दी है कि वो भी इस अहम कौमी मसले के ऊपर बैठ के मुशावरत का हिस्सा बने। और मैं ये तवक्को करता हूँ कि इमरान खान साहब इस दावत को कबूल करेंगे और अपनी अनाज छोड़ के, अपनी जिद छोड़ के इस प्रोसेस का हिस्सा बनेंगे। ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि जिस किस्म का चैलेंज दरपेश है पाकिस्तान को दहशतगर्दी के हवाले से, इकॉनमी के हवाले से, मेरे ख्याल से हर पाकिस्तान के सियासतदान पर यह फ़र्ज़ है कि वो कंट्रीब्यूट करें, उसमें एक कंसेंसस बिल्ड करके इन मसाइल को हल करने की कोशिश की जाए। देर हो गई है, मेरे ख्याल से ये इनिशिएटिव बहुत पहले लेना चाहिए था, और लेकिन वो कहते हैं ना कि देर आयत दुरुस्त आयत। आखिरकार सही सिमत में सही फैसला अगर हो गया है तो तमाम स्टेक होल्डर्स को चाहिए कि वो मिल बैठ के सियासत को एक तरफ रख के पाकिस्तान की बात करें। पाकिस्तान को जिन चैलेंजेस का सामना है वो मिल बैठ के अगर एक मुत्तहिद हो के कुव्वत के साथ हम उसको एड्रेस करें तो कोई वजह नहीं है कि कोई बड़े से बड़ा मसला जो है उसका हल ना निकले। अब देखना ये है कि स्टेक होल्डर जो है किस तरह से रिएक्ट करते हैं। मैं फिर कहूँगा एक बार कि सबको चाहिए कि अपनी जिद, अपनी अनाज को एक तरफ रख दें पाकिस्तान की खातिर और इस प्रोसेस का, इस अमल का हिस्सा बने। और यही एक सूरत है कि हम अपने इन तमाम मसाइल से निजात भी हासिल कर सकें और इकॉनमी की सूरत हाल जो है उसको बेहतर कर सकें। ठीक है, बुखारी साहब हमारे साथ रहिएगा। मियां ताहिर साहब ने भी ज्वाइन किया, सीनियर तजज़ियाकार हैं। मियां ताहिर साहब, आपने सुना जैसे कि बुखारी साहब ने भी कहा कि अना को साइड पर रखना चाहिए, मुल्क के लिए सोचना चाहिए। इस वक्त ज़रूरत इस बात की है, जो हुकूमत ने बड़ा दिल किया है, शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा दिल किया है, क्या आप समझते हैं कि आपको तवक्को है कि इमरान खान साहब भी उतना ही बड़ा दिल करके इसमें शिरकत करेंगे, क्योंकि उनको दावत दी गई है APC में शिरकत की? पहली बात तो ये है कि ये जो एपेक्स कमेटी का इजलास पेशावर में बुलाया गया है, ये अलामती तौर पे बड़ा अहम है, और APC का बुलाना ये भी बहुत अहम है। और मेरा ख्याल है कि अब सियासी क़यादत और अस्करी क़यादत दोनों को अपने वो पुराने जो वो नहीं कर सके, उसका इक़दामात बर वक्त नहीं हो सके इससे पहले, उसकी जो अजाला उसका वक्त आ गया और दोनों को उसका अजाला करना चाहिए। जो पिछली क़यादत थी, मिलिट्री क़यादत, उन्होंने जो भी किया, इमरान खान ने उन पर इल्ज़ाम भी लगाया है, और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो हम सब के मुशाहदे में हैं कि जिस तरह से TTP को के साथ मुज़ाकरात करने की कोशिश की गई और उनको आसान रास्ता फराहम करने की कोशिश की गई। मेरा ख्याल है कि अब उसके अजाले का वक्त आ गया और अस्करी क़यादत को इस पर उसका अजाला करे और उस पर सूरत हाल को दोबारा से देखे। इसी तरह सियासी क़यादत है, सियासी क़यादत को भी अपना मैच्योरिटी शो करनी है, क्योंकि ये पाकिस्तान का मसला है, पाकिस्तान की बका का मसला है, पाकिस्तान की सालमियत का मसला है, ये रियासत का मसला है। सियासत नहीं होनी चाहिए इसमें महज। और ये सही बात है जो आपने कही कि शहबाज शरीफ ने बड़ा दिल करके इमरान खान को दावत दी है। बड़ा दिल पाकिस्तान के लिए किया गया है और जायज़ है, करना चाहिए था, किया गया है। और इससे पहले नवाज शरीफ ने भी बड़ा दिल किया था, जब ज़रबे अज़्म के लिए APC बुलाई गई थी, उस वक्त भी उन्होंने इमरान खान को दावत दी थी, इमरान खान को बुलाया था। और इमरान खान जो है वो पाकिस्तान से बड़े नहीं हो सकते, कोई पार्टी, कोई सरबराह, कोई शख्सियत पाकिस्तान से बड़ी नहीं हो सकती। इसलिए इमरान खान को भी, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इमरान खान उम्मीदों पे पूरे उतरेंगे और वो इस मामले पे सियासी क़यादत के साथ शाना बिशाना खड़े होंगे। जिस तरह से उन्होंने अपने पिछले एक TV एड्रेस में उन्होंने इस बात का इंदिया दिया है, ये बात
फौजी क़यादत पे ये डाल के, ये जिम्मेदारी डाल के कि टीटीपी को वो लाना चाहते थे, तो इंडिया ये है कि मैं नहीं लाना चाहता था। हालांकि चलो इससे पहले जो भी उनका माइंडसेट रहा है और जिस तरीके से वो डील करते रहे हैं उसको हम भी पीछे छोड़ देते हैं। इस वक्त उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है और मैं कम से कम उसको नहीं दोहरा रहा, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि जिस तरह उन्होंने इंदिया दिया है कि वो टीटीपी को नहीं लाना चाहते थे, तो उम्मीद कर रहे हैं कि वो इस एपीसी में आएंगे और इस मामले में किसी किस्म की लचक दूसरी साइड पे देने की कोशिश ना करें। और इस वक्त हमें सख्त फैसलों की ज़रूरत है और वो फैसले जिसमें सीधी सी बात है फसाद फिल अर्ज जो लोग करते हैं उनके लिए कुरान में बड़ा वाज़ेह हुक्म है और उसी हुक्म के तहत हमें उनको कुचल देने के लिए सब पूरी कौम को एक झंडे के तले इकट्ठा हो जाना चाहिए। उसमें इमरान खान हो, कोई पार्टी भी हो, वो मजहबी हो, सियासी हो, जिस तरह की भी पार्टियां, सबको मुत्तहिद होके यक आवाज़ हो बनकर तो इस मामले पे एक ही मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए और मुसल्लह अफवाज की बैक पे खड़े होके उनको अपने फैसला देना चाहिए। और मुसल्लह अफवाज के पास, पाकिस्तान की अफवाज के पास ये ताकत और हिम्मत है और उन्होंने ये पहले भी करके दिखाया है कि हम ये जो फसाद फैलाने वाले हैं इनके खिलाफ हम ज़रबे अज़ब लगाएंगे और इस फसाद को हम रद्द करेंगे, इस फसाद को हम कुचलेंगे। तो उसके लिए जाहिर है कि पूरी कौम का जो अज़्म है और पूरी कौम का जो रिजॉल्व है वो मुसल्लह अफवाज के साथ है और मुसल्लह अफवाज के साथ है और पूरी कौम, यकीनन आप सही फरमा रहे हैं कि मुसल्लह अफवाज के साथ है, पाकिस्तान के साथ है। मियां ताहिर साहब, सलीम बुखारी साहब, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। IG खैबर पख्तूनख्वा मौज़म जहां अंसारी का बड़ा दावा, कहते हैं दहशतगर्दी में मुलव्वस नेटवर्क के करीब पहुंच गए हैं। पेशावर खुदकुश हमलावर को कैमरे में देख लिया है, मैंने उसका चेहरा देख लिया है, वो पुलिस यूनिफॉर्म में था। IG का कहना था एक एक शहीद का बदला लेंगे, अपने बच्चों की लाशों पर सियासत नहीं करने देंगे। मेरे लोगों को एहतजाज पर उकसाना मेरे लिए तकलीफ दे है। IG खैबर पख्तूनख्वा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपदीदा हो गए। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट। IG खैबर पख्तूनख्वा का कहना था धमाके में महकमा पुलिस गम में है, यहाँ सब साइंसदान बने हैं। किसी ने कहा बारूदी मवाद नस्ब था तो किसी ने ड्रोन हमला होने का कह दिया। मौज़म जा बोले अपने बच्चों की लाशों पर सियासत नहीं करने दूंगा, एक एक शहीद का बदला लेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान IG खैबर पख्तूनख्वा शहीद जवानों का जिक्र करते आपदीदा हो गए। कहा मेरे लोगों को एहतजाज पर उकसाना मेरे लिए तकलीफ दे है। उन्होंने शोहदा के अहले खाना का भरपूर साथ देने की यकीन दहानी भी कराई। वाहे ये साजिशी थ्योरियां, ये फजूल बातें, ये मेरे लोगों को, मेरे बच्चों को एहतजाज पर उकसाना, ये मेरी तकलीफ में इजाफा कर रहा है। खुदकुश हमलावर की दूसरी CCTV फुटेज भी सामने आ गई। मुबैना हमलावर ने हेलमेट पहना हुआ था। वो 12:33 पर खैबर रोड से पुलिस लाइन में दाखिल हुआ। 12:38 पर मोटरसाइकिल को पैदल लेकर पुलिस लाइन पार्किंग पहुंचा। पार करके बगैर तलाशी के पुलिस लाइन में दाखिल हुआ। 12:42 पर मस्जिद की तरफ गया। हमलावर ने 1:17 पर खुद को धमाके से उड़ा दिया। इमरान खान बताने की कोशिश कर रहा है कि वो दहशतगर्दी और महंगाई का जिम्मेदार नहीं। वफाकी वजीर शहरी रहमान का कहना है कि इमरान खान हर बार दूसरों पर जिम्मेदारी डालकर बरी-ओ-ज़िम्मा नहीं हो सकते। इमरान खान को कौम के 10 सवालों के जवाब देना होंगे। ट्वीट में कहा इमरान खान बताएं उसामा बिन लादन को शहीद किसने कहा, दहशतगर्दों से मुज़ाकरात किसने किए, सजा याफ्ता दहशतगर्दों को सदारती माफ़ी किसने दिलवाई, दहशतगर्दों को किस मकसद के लिए सदारती माफ़ी और रिहाई दी गई, सजा याफ्ता दहशतगर्दों की रिहाई के हवाले से पार्लियामान को एतमाद में लिया गया। मुल्क में दहशतगर्दों के दफ्तर खोलने का ख्वाहिशमंद कौन था, 30 से 40 हज़ार जंगजुओं की पाकिस्तान में आबादकारी कौन करना चाहता था, क्या इन जंगजुओं को पाकिस्तान में आबाद करने की इजाज़त पार्लियामान से ली गई थी, दहशतगर्दों को मुल्क में आबाद करने का फैसला इमरान खान का ज़ाती था, दहशतगर्दों को रियायत देने के बावजूद दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा क्यों हुआ, मुल्क ने 70,000 से ज़ायद शहादतें दी हैं। शहरी रहमान ने कहा कि आपकी बदतरीन हुकूमत से पहले मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा हो चुका था, अब आप ये नहीं कह सकते कि मैं जवाबदेह नहीं। जमात इस्लामी ने दहशतगर्दी के खिलाफ लाहौर से मार्च का ऐलान कर दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं मार्च में 1 लाख अफराद शरीक होंगे। पेशावर में 8 फरवरी को खैबर पख्तूनख्वा बचाओ मार्च होगा। IG खैबर पख्तूनख्वा ने अपनी नाअहली का एतराफ़ किया, लेकिन ये मसले का हल नहीं। हुक्मरान भी अपनी नाअहली का एतराफ़ करें। चाहिए
सदर को भी इस्तीफा देना चाहिए, वज़ीर आला को भी इस्तीफा देना चाहिए, गवर्नर को भी इस्तीफा देना चाहिए। आप लोगों की वजह से हमारे घरों में क़यामत सुग़रा पर, और इंशाअल्लाह इसमें 1 लाख शहरी पाकिस्तान के नहीं, यहाँ पेशावर की शहरी शरीक होंगे, और इसकी क़ियादत मैं खुद करूँगा, मैं खुद आपका इस्तेक़बाल करूँगा। हमारा जीना और मरना इस्लाम के लिए है, इस मुल्क के लिए है, अवाम के लिए है। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। पाकिस्तान और ईरान में दहशतगर्दी में बैरूनी ताकतें मुलव्वस हैं। 24 न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू में ईरानी सफ़ीर सैयद मोहम्मद अली हुसैनी कहते हैं, पेशावर धमाके के दहशतगर्दों का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। बोले, मिलकर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ काम करेंगे। ये समझते हैं कि ये मुख्तलिफ जो टेररिस्ट ग्रुप्स जो है, इनका मिल के हम पाकिस्तान में और ईरान में जो है अपने बाहमी नज़दीकी ताउन के साथ जो है इनका मुकाबला कर सकते हैं। हम किसी भी दहशतगर्द ग्रुप को ये इस बात की इजाज़त नहीं देंगे कि हमारे जो है ताल्लुकात जो है उनको जो है किसी किस्म का जो है उनमें कोई खदशा वारद कर सकें, या दोनों ममालिक की सरजमीन जो है खिलाफ जो है वो इस्तेमाल कर सकें। मर्दान से ताल्लुक़ रखने वाले फ़र्ज शनास हवालदार शराफत अली भी सानहा पुलिस लाइन पेशावर में शहीद हो गए। शराफत अली 14 माह बाद सर्विस मुकम्मल होने पर रिटायर्ड होने वाले थे। मज़ीद जानेंगे मंजूर हुसैन की इस रिपोर्ट। बहुत शुक्रिया आपका। SSP सेंट्रल कराची मारूफ उस्मान का कहना है कि पुलिस एहलकार अपने अफसर की रिहाइश गाह के बाहर मौजूद था। मुलजिमों ने सर पर गोली मारी, जिससे पुलिस एहलकार मौके पर ही शहीद हो गया। SSP का कहना है कि वाक़या डकैती है या टारगेटेड, तफ्तीश के बाद ही पता लगाया जा सकता है। यहाँ पे ऊपर एंटी इंक्रोचमेंट के सब इंस्पेक्टर है, उसकी रहाइश थी। उसकी रहाइश पे ये आया था और सिविल ड्रेस में था, बाइक पे वापस जा रहा था, और इसके बैक साइड पे, सर की बैक साइड पे गोली लगी और आंख से एग्जिट हुई है। तो अब इसमें दोनों एंगल हम देख रहे हैं कि क्या इसमें ये डकैती थी या कोई टारगेट हुआ है। इस चीज़ को अभी हमें सर्टन नहीं कर पाए। CCTV कलेक्ट कर रहे हैं तो फर्दर वर्जन देंगे आपको। कराची में खातून की DSP ट्रैफिक से बदतमीजी, कार को मैंने सिर्फ सिग्नल की पाबंदी के लिए उसको रोका कि भाई आप सिग्नल पे आगे आ गए ना, मैं उसको रोक रहा हूँ फिर भी नहीं, फिर आगे आ गया। फिर मैंने बोला यार ऐसे नहीं करो, अच्छे शहरी बनो, अगर आपकी वजह से ऐसे करोगे तो फिर पढ़े लिखे पे दूसरे क्या करेंगे। इतने में उसकी वो बेगम उतरी, उसने बोला कि भाई तुम हमारे नौकर हो। मैंने बोला नौकर जो कानून पे अमल कर रहे हैं उनके लिए हम नौकर हैं। हाँ, आप करो, आप आगे आ गई तो आप वो फिर लड़ना शुरू कर दिया। उसने बोला कि मेरा भाई जो है वो कमांडर है नेवी में, मैं बस अभी बुलाती हूँ। मेरा टूट गया था, वर्दी तो नहीं फाड़ी उसने, मगर उसने मारा मुझे दिल से है। 4-5 थप्पड़ मारे, घूसे मारने शुरू कर दिए। अब क्या कर सकते हैं, अब कानूनी कार्रवाई, मैंने FIR दाखिल कराई है। बहुत शुक्रिया आपका। SSP सेंट्रल कराची मारूफ उस्मान का कहना है कि पुलिस एहलकार अपने अफसर की रिहाइश गाह के बाहर मौजूद था। मुलजिमों ने सर पर गोली मारी, जिससे पुलिस एहलकार मौके पर ही शहीद हो गया। SSP का कहना है कि वाक़या डकैती है या टारगेटेड, तफ्तीश के बाद ही पता लगाया जा सकता है। यहाँ पे ऊपर एंटी इंक्रोचमेंट के सब इंस्पेक्टर है, उसकी रहाइश थी। उसकी रहाइश पे ये आया था और सिविल ड्रेस में था, बाइक पे वापस जा रहा था, और इसके बैक साइड पे, सर की बैक साइड पे गोली लगी और आंख से एग्जिट हुई है। तो अब इसमें दोनों एंगल हम देख रहे हैं कि क्या इसमें ये डकैती थी या कोई टारगेट हुआ है। इस चीज़ को अभी हमें सर्टन नहीं कर पाए। CCTV कलेक्ट कर रहे हैं तो फर्दर वर्जन देंगे आपको। तहरीक इंसाफ की अदालत के पीछे छुपने की एक और कोशिश नाकाम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ममनुआ फंडिंग केस में इमरान खान की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन की फैक्ट फाइंडिंग को दुरुस्त करार दे दिया गया। इलेक्शन कमीशन का वफाकी हुकूमत को मालूमात फराहम करना गैर कानूनी नहीं। अदालत ने इलेक्शन कमीशन का PTI को शो कॉज नोटिस जारी करने का अमल भी दुरुस्त करार दे दिया। देखिए इसी बारे में एहतशाम कियानी की रिपोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार पर मुश्तमिल बेंच ने ममनुआ फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ की अपील पर फैसला सुना दिया। अदालत ने तहरीक इंसाफ की दरखास्त मुस्तरद कर दी। तफसीली फैसला जस्टिस बाबर सत्तार ने तहरीर किया, जिसमें लिखा गया है कि दरखास्त कबल अज वक्त है, इस मौके पर अदालती नजरसानी नहीं की जा सकती। फैसले में तहरीक इंसाफ की इस्तदा मुस्तरद करते हुए लिखा गया कि इलेक्शन कमीशन का वफाकी हुकूमत को मालूमात फराहम
करना गैर कानूनी नहीं है। मुमकिन है स्क्रूटनी के दौरान इलेक्शन कमीशन नतीजे पर पहुंचे कि कोई पार्टी फौरन एडिड है। पार्टी के फौरन एडिड होने के तयन का इख्तियार वफाकी हुकूमत के पास है। ऐसे हालात में इलेक्शन कमीशन बतौर रेगुलेटर मालूमात वफाकी हुकूमत को फराहम कर सकता है। फैसले में मजीद लिखा गया कि तहरीके इंसाफ को आर्जी फाइंडिंग्स का जवाब देने के लिए शो कॉज नोटिस जारी किया गया। उनके पास रिपोर्ट पर एतराज का हक है। इलेक्शन कमीशन बतौर पब्लिक अथॉरिटी शफाफ और मुनासिब तौर पर अमल करने का पाबंद है। हकाइक का जायजा लेकर खुले दिमाग के साथ फैसला करना इलेक्शन कमीशन का फर्ज है। एहतशाम कियानी, 24 न्यूज, इस्लामाबाद। मुमजना बेटी टेहरियान को कागजात नामजदगी में जाहिर न करने पर नाअहली की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ केस की समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील देने का फैसला किया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि तहरीरी जवाब में हक़ाइक़ को दुरुस्त तौर पर नहीं लिखा गया। जिस बयान हल्फी पर दरख्वास्त आई है वो 2018 की है। मुआविन वकील ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को डिसीव किया और वो मुस्ताफ़ी भी हुए। लार्जर बेंच के सामने ये मामला रखेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि आइंदा हफ्ते के लिए लार्जर बेंच बना रहे हैं। अदालत ने केस की समाअत 9 फरवरी तक के लिए मुलतवी कर दी। तोशाखाना केस में नाअहली के खौफ से चेयरमैन पीटीआई इमरान खान NA 193 ज़िमनी इलेक्शन से दस्तबरदार हो गए। इमरान खान ने जामपुर से कौमी असम्बली के हल्का NA 193 से कागजात नामजदगी वापस ले लिए। अब सरदार मोहसिन खान लगारी इस हल्के से पीटीआई के उम्मीदवार होंगे। सदर पीटीआई राजनपुर अब्दुल रज़ाक राजा कहते हैं ये फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेरे समाअत मुकदमात में इमरान खान के खिलाफ मुमकिना फैसले के पेश नज़र किया गया है। लेकिन रहनुमा अवैस लगारी कहते हैं कि इमरान खान शिकस्त के खौफ से भाग गए हैं। लाहौर में इमरान खान की रिहाइश गाह ज़मान पार्क के बाहर ट्रैफिक जैम रहना और कारकुनों के लड़ाई झगड़े रोज़ का मामूल बन गए। केनाल रोड पर ज़मान पार्क से गुजरने वाली ट्रैफिक को रास्ता न देना, शहरियों से बदतमीजी और लड़ाई झगड़े पीटीआई कारकुनों ने मामूल बना लिया। मज़ीद जानेंगे अब्दुल्ला मारूफ से। जी अब्दुल्ला। जी, इस वक्त मैं केनाल रोड चेयरमैन तहरीके इंसाफ इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद हूँ। जब से चेयरमैन तहरीके इंसाफ लाहौर में रिहाइश पजीर हैं तब से केनाल रोड के तरफ जो ट्रैफिक के मसाइल हैं उनमें शदीद मुश्किलात का सामना आ रहा है। इसके साथ साथ दिन ब दिन लड़ाई झगड़े में भी इजाफा होता चला जा रहा है। अभी कुछ देर पहले पीटीआई कारकुनान की जानिब से लड़ाई झगड़े का वाक़या सामने आया है कि पीटीआई कारकुनान ने मुसाफिरों से गुत्थम गत्ता हो गए। जब हमने मुसाफिरों से वजह जानने की कोशिश की तो उनका कहना था कि हम यहाँ से गुजरते हैं। एक तो पीटीआई कारकुनान की जानिब से यहाँ पे कैंप लगाए गए हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो गई है, यहाँ से गुजरना महाल हो जाता है। और इसके साथ साथ पीटीआई कारकुनान रोड के ऊपर आकर खड़े हो जाते हैं। जब हमने रास्ता मांगने की कोशिश की और उनको बोला कि साइड पे हो जाए तो पीटीआई कारकुनान हम पर हावी हो गए और हमारे साथ जो है गालम गलोच करने लगे। इसके साथ साथ पीटीआई कारकुनान की जानिब से कैंप के बाइस यहाँ पे तकरीबन जो एम्बुलेंस है उसको भी रास्ता नहीं दिया जाता और यहाँ पे फंसी रहती है। कारकुनान की जानिब से मुसाफिरों की जानिब से हुकूमत से यही मुतालबा किया जा रहा है कि खुदारा इस जो ट्रैफिक मसाइल हैं इनको ठीक किया जाए और जो लोग यहाँ से गुजरने वाले हैं उनकी मुश्किलात को कम किया जाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 24 न्यूज़।